Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. So in the last lecture, we have stopped on note of lakar. We were discussing lakaras, and today we'll continue from there itself. I hope everybody is ready with one pen and notebook because today you have to solve again many things. You have to answer also. So please be focused here क्योंकि मैं किसी को भी unmute करके आंसर देने के लिए बोलने वाली. Okay, and if you know the answer, you can raise a hand. So we're going to start with the lakaraha. Again 8th and 9th में जो भी हमने सीखा है revise करेंगे so that we all will be on same line. We are all will be selling in same boat, and then we're going to solve some questions which will be there in your board exams. So lakaraha means tenses in Sanskrit. So there are again 5 tenses you have in 10th standard. First is lat lakarah and second is lang lakarah. So we have already learned this table in the last lecture, previous lecture. I hope आपने ये learn किया होगा, practice किया होगा and लिखा भी होगा, which was your homework. So can anybody try to say all these pratyayas without seeing? Anybody? Okay, just a minute. Hello, Preet. Hello. Yes, ma'am. Yes, Preet. Would you Ma'am. like to try the pratyayas of lat lakar parasmay pad? Yes, ma'am. Yeah, please say. I think so. It's ti, ta, anti, Very good. pratham purush. Hmm. Si, ta, tah, madhyam purush. Yes. Mi, vah, mah, uttam purush. Very good. Fantastic. Thank you, ma'am. Okay. So in this manner, you have to learn also lang lakar. Okay. So here is lat lakar and lang lakar. Now who will try this lang lakar pratyayas of parasmay pad? Okay. Urvi is raising hand. Hello. Yes. त ताम अन प्रथम पुरुष विसर्ग तम त मध्यम पुरुष अम व म उत्तम पुरुष. Okay. Great. So in this manner, you have to practice the pratyayas. Now students, please be honest and देख के मत बोलना ये जो भी प्रत्यय है आपके practice के लिए ही है. Now also there are some आत्मनेपदी प्रत्यय, ये भी हमने last time किया था. Now based on this, आपको कुछ tables आपके notebook में लिखने हैं. I hope सबके पास वो प्रत्यय है. Quickly ये जो screen पे लिखा हुआ है, these are the questions you have to solve now in your notebook. And then one by one you have to read the answer. You have to write down a table of puja dhatu, which is of parasmay. Quickly write down. Also you have to write down second table as disha dhatu, sixth group parasmay pad. दोनों का भी आपको लट लकार लिखना है. So जो प्रीत ने अभी अभी प्रत्यय किए थी तहन तीसी थह थ एंड नी वह मह, वो आपको यूज करने हैं फॉर बोथ द धातुस पुज एंड दिश. एंड आई होप यू रिमेम्बर दैट वी हैव लर्न्ड ये जो ग्रुप्स होते हैं उनका हर एक सिंबल होता है एंड वो हमें ऐड करना है. So puja is from 10th group, so you have to add aya, it will become pujaya, and then add the pratyayas. Quickly try the table. ये आपने 8th 9th में किया है, but I want a revision ताकि जो लोग भूल गए उनका भी रिवाइज हो जाए. And disha 6th group परस्मय पद, दोनों के लिए भी लट लकार यूज करना है स्टूडेंट्स. ती तह अंति का टेबल लिखना है. 9th have to write down. I hope clear है.
सेम हैंड्स नहीं चाहिए मुझे. Come on, 2 minutes more for first table puja. ओके, अदिति का फर्स्ट टेबल शायद कंप्लीट हो गया. यस अदिति. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Just read your first table of puja. पूजयामि, पूजयावः, पूजयामः, पूजयसि, पूजयथः, पूजयथ, पूजयति, पूजयतः, पूजयन्ति. ओके ग्रेट. उसको लाइन ना वो लास्ट आएगा, एंड जो लास्ट आपने लिखा है पूजयति, वो लाइन को हमें ऊपर लेना है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक पूजयति, पूजयतः, पूजयन्ति, एंड हमारा एंड होगा पूजयामि, पूजयावः, पूजयामः. ओके अदिति. Yes, Miss. यस, वो करेक्शन कर लेना. Yes, but when we write, when we say the first person, we are pronouncing like I and second person you. So can we write पूजयामि? नो नो, बट इन संस्कृत मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे थर्ड पर्सन को, जिसको हम प्रथमः पुरुषः बोलते हैं. तो इसीलिए वी हैव टू राइट डाउन पूजयति एट द टॉप एंड पूजयामि इन द लास्ट लाइन. Okay, Miss. ओके या. ओके चलो नेक्स्ट. दिश. दिश 6th ग्रुप परस्मय पद. Who would like to answer? Yeah, someone is saying before 3 years ago it was like that पूजयामि पहले से होता था and पूजयति, right? I want new hands to raise. Okay, Dhanashri. Yes, ma'am. Yes, you have completed Disha wala table. Yes, ma'am. Ma'am, can you hear Yes. me? Yes, yes, I can hear you. दिशति, दिशतः, दिशन्ति प्रथम पुरुष, दिशसि, दिशतः, दिशथ मध्यम पुरुष, दिशामि, दिशावः, दिशामः उत्तम पुरुष. Okay, great, fantastic. Thank you, ma'am. Chalo, next. Now you have to write down Lang Lakar. And the dhatu given is Patha, first group Parasmay Padam. See, now this time this is a Lang Lakar. Lang Lakar is a past tense, so before any kind of a form, you have to add a, which is compulsory. So it will become a, pa, tha. And ये first group का है, so after patha you have to add a. चलो अभी आपको raw form मिल गया है. Quickly add the ending and tell me the answer. Sarvesh, are you ready with the answer of patha?
Yes, Aarti Desai. Have you written the answer for Patha Dhatu? Yes, miss. Okay, read the answer, please. अपठत, अपठताम, अपठन प्रथम पुरुष, अपठत, अपठः, अपठतम, अपठत त मध्यम पुरुष, अपठतम, Yes. अपठाव, अपठाम उत्तम पुरुष. ओके, ग्रेट. सो जैसे आपने देखा कि इसमें हमें अ ऐड करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट जब होता है इट इज अपठत तो इनकम्प्लीट एंड मध्यम पुरुष बहुवचन में जो आपका 6th फॉर्म होगा उसमें आपको त कंप्लीट लिखना है अपठत. ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे टेबल्स हमें फ्रेम करने हैं इन योर एग्जाम. तो अगेन द गुड न्यूज इज ये टेबल में से 3 फॉर्म्स आपको दिए हुए रहेंगे एंड बाकी 6 फॉर्म्स आपको लिखने हैं. तो ऐसे ही टेबल्स हमें कंप्लीट करने हैं इन एग्जाम. नाउ लेट्स मूव अहेड. आपके आंसर्स कुछ देखो इस तरह से दिखेंगे, एक बार चेक कर लो, कुछ मिस्टेक है करेक्ट कर लो. ऑल द स्टूडेंट्स एंड आई वांट न्यू स्टूडेंट्स टू आंसर. सेम स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, or else I'll going to pick up anyone. So this is the answer for puja dhatu. Pujayati, pujayatah, pujayanti, pujayasi, pujayatah, pujayatha, pujayami, pujayavah, pujayamah. This is for disha. Okay, this is atmanepad. You can also write down in parasmepad. Then we have next patha ek papa. Okay. Now next is lot lakar. तो लास्ट टाइम हमने ये रिसाइट नहीं किया था. Now this lot lakar is also called as आज्ञार्थ. अगेन ये 9th स्टैंडर्ड में आपका हुआ है. अभी आपका ये वीक का प्रैक्टिस टेबल रहेगा. दिस टेबल लोट लकार के 2 टेबल्स. सो फर्स्ट है परस्मय पदम एंड सेकंड इज आत्मनेय पदम. इसको रिसाइट ऑफ कोर्स वैसे ही करना है. तू ताम अंतु प्रथमः पुरुषः एंड एवरीबॉडी प्लीज से इट प्रथमः पुरुषः नॉट प्रथम पुरुष. वो विसर्ग को प्रोनाउंस करना है. Yes, Shrey is saying it is used for order or request. Perfect, Shrey. This lakar is used for order or request. Then next आपको read करना है second line as dash tam ta और मध्यमः पुरुषः and then आनी आव आम उत्तमः पुरुषः. ग्रीन वाला कॉलम अभी देखना है. आत्मनेय पदम ताम इताम अंताम प्रथमः पुरुषः, स्व इथाम ध्वम मध्यमः पुरुषः, ऐ आव है आम है उत्तमः पुरुषः. सी लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट ए, इट इज ऐ आव है आम है उत्तमः पुरुषः. ओके, क्विकली राइट डाउन 2 टेबल्स इन योर नोटबुक. क्यों लिखना है ये टेबल्स? क्योंकि हमें पता है कि हमें लकारम लिखत ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी करना है इन द लेक्चर इटसेल्फ. सो क्विकली राइट डाउन. शॉर्ट फॉर्म्स में ही लिखना है. एव द्विव बव एंड सम सफिक्सेस. सो लास्ट वीक आई होप सबका लट लकार एंड लंग लकार लर्न हुआ है. इन लेक्चर में मैं और 1-2 स्टूडेंट्स को पूछूंगी लट लकार एंड लंग लकार के प्रत्यय. अगेन वीक आपका ओरल टेस्ट होगा at the beginning of lecture for lot lakar and one more lakar. So quickly note it down, take a screenshot. Last 10 seconds.
Okay, the next lakar is Vidhiling lakarah. Vidhiling lakar is also called as Vidyata. Okay, and again it is used for permission or giving blessings. Also, sometimes Vidhiling lakar is used to denote the future assumptions. And the pratyayas are it, itam, iyuhu prathamah purushah, ihi, itam, ita madhyamah purushah, iyam, iva, ima uttamah purushah. This is for Parasmay Padam. And for Atmanay Padam, you have to read like ita, iyatam, iran prathamah purushah, ithaha, iyatham, idhvam madhyamah purushah, iya, ivahi, imahi uttamah purushah. Okay, quickly write down pratyayas of Vidhiling lakarah. Harsh, unmute yourself and please read the table. Try to read the table of Vidhiling lakar. Harsh, am I audible to you? Okay. Bhagyashri Mestri, are you there, beta? Bhagyashri, unmute yourself. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, do I need to say Vidhiling lakar pratyay? Yes, Vidhiling lakar Parasmay Padam. Just you have to read. Okay. Et itam iyuhu prathamah purushah, ihi Very itam good. ita madhyamah purushah, iyam iva ima uttamah purushah. Okay, fantastic. Jitendra wants to try the another table. Yes, Jitendra, unmute yourself. Hello, ma'am. Yes, Atmanay Padam, please. Atmanepadam irta iryatam irana itha yatham idhvam irya irvahi irmahi. ओके फिर से एक बार मेरे साथ बोलो ईत ita इयाताम iyatam इरा- Am I Hello, audible to ma'am. you? Yes, audible. इथाहा इथाहा Itaha इयाथाम iyatham ईध्वम idhvam मध्यमः पुरुषः madhyamah purushah ईय iya इवहि ivahi इमहि imahi uttamah purushah. उत्तमः पुरुषः. Okay, great. So in this manner you have to learn by heart the table. Now let's move ahead and
We have a last table of lut pratyayaha. Lut means bhavishyat kal, future tense. Now we don't have to buy this table because if we know the lat lakar table, we have to just add sya before the pratyayas of lat lakar. You can observe here there is syati. Just sya is added before ti. हमने ये प्रत्यय पहले ही सीखे हैं बच्चों in lat lakar. ti ta antah nih mah etc. Now we have to just add sya, so it becomes syati, syatah, syanti, syasi, syathah, syatha, syami, syavah, syamah. Same for Atmanepadam, syate, syete, syante, syase, syethe, syadve, se, syavahe, syamahe. Quickly write down in your notebook Lut Pratyayaha, entitled as Bhavishyat Kalah. Am I audible now? Okay, quickly write down Lut Pratyayaha. Parasmaipadam and Atmanepadam. Very easy, just add sya before Lat Lakar. Middling is used for blessings, future assumptions. Okay. Meanwhile, please see all the forms given below. After the tables, there are some forms and the question is Melanam Kuruta. तो अभी next answer आपको इसका देना है. You have to match the columns. In fact, rows, not columns. You have to match rows. First row with the second row. Those who want to match or those who want to answer for the question Melanam Kuruta. In the first row, there are Rupani, and there are forms given of Kriya Padas. Some Kriya Padas in future tense are given in the first row. And in the second row, there are original. So suppose Patisami is my first form, then the original dhatu from which it is made is Pat. So I will join Patishami with her. I will join Patishami with her. In this manner, you have to answer the remaining Kriya Padas or remaining questions. Okay, someone is saying that Atmanepad Kriya Padas of this Bhavishya Kal, these Kriya Padas are not same like Lat Lakar. It is absolutely same like Lat Lakar. Te ite ante, se ithe dve, I vahe mahe. Only that E is dissolved here and E is mixed with Sya. So uska matra ban gaya. E is used as matra on Sya everywhere. So ite tha. Here you can observe in the second one,
सिएते हो गया, इते का इट इज सिएते, सो ई is used as matra over here. Now, सबका लिखते हो गया and also in the answer. So, and to give answer. Okay, Siddham. Sai Dham. What's your name, beta? Sai Dham. Hornbury. Okay. Yes, Andri. So please answer for the remaining dhatus and verbs. कैसे मैच करोगे आप? मिस फर्स्ट वाला पटेश्यामी को पट के साथ. Very good. फिर Second one. खेलिष्यन्ति को खेल के साथ. Okay. फिर दास्यति को दा के साथ. Correct. Next. फिर नंस्यति को नम के साथ. Yes. फिर मोक्षति को मुच के साथ. Okay. Okay. Stop. Chalo. Hitesh wants to give the remaining answers. Yes, Hitesh. Yes. Okay. आप आगे के remaining answers बताओगे? Yes. हाँ. Gamishyati will go with gum. Gama. Gama. Vakshyati with Vakshyati with vacha. Correct. Prakshyami will go with pracha. Okay. And prapsyati will go with pra plus ap. Okay. So students, ऐसा पता है कि दो there are difference of sir and sh. तो तीन अलग अलग combinations यहाँ पे दिए हैं. Year is mixed with sh, षटकोण वाला sh, sometimes with क्षत्रिय वाला sh and all that. So तो ये जो वेरिएशंस दिख रहे हैं इरेगुलर फॉर्म्स है. तो अभी हमें याद नहीं रखना है कि हर एक फॉर्म में स लगाना है या श लगाना है या क्षत्रिय या श लगाना है. सिंपली आपको एग्जाम में 2-3 फॉर्म्स पहले से मेंशन किए हुए रहेंगे. फॉर एग्जांपल को टेबल कंप्लीट करने के लिए आएगा. देयर विल बी फ्यू फॉर्म्स, सपोज पटिष्ठामी. So to remain 2 forms you have to complete. I'm talking about this. ये अगर हो तो form partition complete remaining 2 forms as patishyatah, patishyati. Okay, so you don't have to bother or don't have to worry about variations in the form. You have to just focus कि अगर there we have to use क्षत्रिय वाला श with और then वही form है. Okay, chalo. So this is our root lakar. Now after revising all the stages of lakar, 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 and root lakar, then you have to solve very important question as lakara likata. Okay, so here are 10 questions. Quickly notebook में answers लिख लो. Then मैं एक एक को एक एक आंसर पूछने वाली हूँ. And now I am going to pick up anyone. So be ready. आपके पास पहले से सब tables लिखे हुए हैं, अभी हमने लिखे हैं. And you have to practice for lakaram लिखत. See students, this is very important question. आपको हर एक पैराग्राफ में जो भी पहले 2 पैराग्राफ्स आने वाले हैं उसमें कंपल्सरी लकारम लिखत आने वाला है. So one verb will be given and you have to just write down whether it is lat lakarah or lang lakarah. एक word सिर्फ लिखना है आपको आंसर. दस के 10 आंसर्स लिख लो. आपको एंडिंग्स ऑब्जर्व करने हैं. जैसे टी एंडिंग में टी आ रहा है. So कौन से टेबल में आपको टी देखा था वो रिवाइज करो and write down the name of lakar.
Please be active in the lecture. Today's lecture is not just one-way traffic. It is not a lecture of lesson. Grammar है, so आपका भी contribution सबसे ज़्यादा important है. Sanchita. Unmute yourself and please try to give answer for the first question. DN Nagar Sanchita, am I audible to you? Please try to answer the first question. See, जो भी आंसर नहीं दे रहा है, नाम नोट करके ले रही हूँ मैं उनका. रॉन्ग तो रॉन्ग, एटलीस्ट ट्राई टू आंसर. आपको क्या समझा है नहीं समझा है वो मुझे पता चलना चाहिए. Hello. Yes, yes, Sanchita. Nivasati Latlakar Pratham Purush. Okay, don't write down Prathama Purusha. Just let Lakaraha. Okay. Okay, and make sure you have put that Visarga after Ra. The two dots are very important. Let Lakaraha. Thank you so much, Sanchita. Thank you, ma'am. Yes, next, Amog. Yes, miss. Yes, second question, Akarot. Lung lakar. Lakar. Very Lung good, fantastic. Lung lakar. And don't write go there. Just write ng. K, k, g, g, ng. Yes, miss. Thank you, miss. Correct. Chalo, next, Ghatkopar. Amruta. Ghatkopar Amruta. Please try to answer for the third question. यतस्व लोट लकार. Okay, correct. Yatasva lot lakar. Yes, Preet. What is the answer for fourth one? Lang lakar. Bhavat lang lakar. Lung lakar, it is past tense. No. Haan. There is no a at the beginning, beta. I think so it's Vidyalinga lakar. Perfect. It, itam, iyuhu. यहाँ पे it use हुआ है. So it is विधिलिंग लकार. Correct. Hey, ma'am. So देखो कितना छोटा सा मिस्टेक हो गया. तो दिख गया, हमने लिख दिया लंग लकार, बट हमने ये ऑब्जर्व ही नहीं किया कि बिगिनिंग में अ नहीं है. ओके, तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स मत करो. Yes. After that, Soham. Yes, Soham, GKPE Soham. Hardankar. Would you like to answer for the fifth one? Soham is not answering. Okay. Yes, DN Nagar Adarsh. Please try to answer for the fifth one. Simple question. Yes, Adarsh. The fifth one, Khadanti. What will be the lakar? Lat lakar. Raha. Okay, great. चलो, घाटकों पर कृपा मोहिते. घाटकों पर कृपा मोहिते. Yes, कृपा.
Kripa, am I audible to you? You have to answer for the sixth one. I think you are trying to say something, but the voice is not clear. Yes, Vedant. Vedant, Poddar, DN Nagar. Vedant, would you like to answer? Quickly answer the questions. Okay. DN Nagar, Anushka, would you like to answer for the sixth one? Okay, Vedant's mic is not working. Okay, great. आदित्य ने यहाँ पे हमें आंसर बता दिया है. The answer for sixth one is Kuru. What will be the answer for seventh one? अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है, क्विकली चैट बॉक्स में ऐड करो आंसर्स फास्ट. मुझे नए नेम्स दिखने चाहिए अभी चैट बॉक्स में. सेम नेम्स नहीं चाहिए मुझे. उर्वी, प्रीत, सोहम, अदिति के अलावा कोई और आंसर दे रहा है? Correct. Abhavan is lung lakar. Many of you are answering correct. Abhavan is lung lakar. O is at the beginning. Fantastic. Chalo. What is the answer for eighth one? Karoshi. थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है. सिक्स का आंसर था लोट लकार, सेवेंथ का लंग लकार एंड एट्थ का करोशी का आंसर है लट लकार. नॉर्मल लट लकार है. हमने सीखा था सी थ, वो सी का ही यहाँ पे बन गया है शी, क्योंकि क्रू धातु जो है वो इरेगुलर है. चलो द नाइन्थ एंड टेंथ वन. नाइन्थ वन का आंसर क्या होगा? पठतः. वेरी सिंपल, अभी आपने लिखा है. Yes, correct. तन्मय ने करेक्ट आंसर दिया. इट इज लट लकार. मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्ट. ग्रेट स्टूडेंट्स. प्रेजेंट टेंस हितेश ने लिखा है. करेक्ट हितेश, बट ट्राई टू recollect in Sanskrit itself. And the last answer for arajata. Yes, it is lang lakar because there is a at the beginning and complete ta at the end. So lang lakar atmanepadam. Quickly check all the answers. अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो करेक्ट कर लेना. लट लकारः, लंग लकारः, लोट लकारः, विधिलिंग लकारः. कुरु इज सिक्स क्वेश्चन. कुरु जो है कुछ लोगों को उसमें डाउट है तो एक बार क्लियर कर देती हूँ. ये जो कुरु है, कुरु इज अ फॉर्म ऑफ क्रू धातु. कुरु इज अ फॉर्म ऑफ क्रू धातु लोट लकार. एंड हम लोट लकार में वो लर्न करते हैं ना, डैश तम त मध्यमः पुरुषः. तो यहाँ पे डैश यूज हुआ है, मतलब नो एंडिंग्स एट ऑल. कुरु में देयर इज नो एंडिंग एडेड. There is dash and hence only kuru. Ninth one is different. Oh yeah, sorry. Answer में ninth one different है. यहाँ पे ninth one पठतः है. पठतः is लट लकार. Okay, चल. Now we're going to start with the sum part of lesson number 2 finally. But again, this is not a lesson. We have to focus on some grammar part of second lesson. Okay, so यहाँ पे एक beautiful phrase लिखा हुआ है, beautiful quotation in English जो सबको पता है. A friend in need is a friend indeed. And students, friendship is the best relation
ओके जो हम खुद से चॉइस कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स आपको बहुत प्यारे होते हैं, सबको हर एक को अपने बेस्टीज फ्रेंड्स बहुत प्यारे होते हैं। तो अभी ये जो फ्रेंडशिप का ग्रेट ऐसा रिलेशनशिप है उसके बारे में एक फैंटास्टिक स्टोरी संस्कृत में दिया हुआ है। तो थ्रू दिस वी हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट अ ट्रू फ्रेंड। हमें ये स्टोरी ये सिखाने वाली है कि आप अपने फ्रेंड्स को कैसे जज कर सकते हो वेदर दे आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ योर्स और नॉट। तो वही स्टोरी का नाम है व्यसने मित्र परीक्षा, विच इज अ सेकंड लेसन फॉर कंपोजिट एज वेल एज एंटायर। नाउ द वर्ड व्यसने, यहाँ पे व्यसन इज नॉट एडिक्शन, व्यसन इज कैलामिटी, mitra is friend and pariksha is exam. So when there is a calamity, there is an exam of friend. The friend is examined in the times of calamity, in the bad times of you. So जब भी हम कोई मुश्किल में है तब हमें जो हेल्प करता है वही हमारा सच्चा फ्रेंड होता है। एंड ऐसी एक स्टोरी है, बट दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हितोपदेश। तो शायद आपने ये नाम नहीं सुना होगा हितोपदेश, बट आपने पंचतंत्र ऐसा नाम जरूर सुना होगा। बचपन से हम ये पंचतंत्र के स्टोरीज अलग अलग लैंग्वेजेस में रीड करते आ रहे हैं। मेनी टाइम्स हमने वीडियोस देखे हैं या फिर टीवी चैनल्स पे हमने बहुत सारे कार्टून्स भी देखे हैं पंचतंत्र के। तो पंचतंत्र इज बेसिकली द स्टोरी टेल एंड इट इज थ्रू एनिमल स्टोरीज। तो वैसे ये जो हितोपदेश है उसका ही भाई है, आप बोल सकते हो एक सेकेंड पार्ट है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरीज आर देयर इन हितोपदेश ऑल्सो, जिसका करता है नारायण पंडित। अगेन यहाँ पे देखो हित मीन्स फॉर वेलबींग, फॉर गुड थिंग्स, सो हितकारी जो भी है, एंड उपदेश मीन्स एडवाइस। तो आपके हित में किए हुए उपदेश एडवाइस ये पर्टिकुलर बुक में दिए हुए हैं बाय नारायण पंडित। ये इसमें से सब कुछ आपको बस 2 लाइन्स में यूज करना है इन इंट्रोडक्शन, दैट व्यसने मित्र परीक्षा is the beautiful story taken from हितोपदेश and the कर्ता is नारायण पंडितः। ये आपको इंट्रोडक्शन में माध्यम भाषा उत्तरम लिखत इंग्लिश आंसर में लिखना है। तो उसके लिए बस ये आपको 2 पॉइंट्स बताए। देन विल गोइंग टू मूव अहेड। ये जो हमारी फ्रेंडशिप की स्टोरी है जो हमें एनिमल के बिहेवियर से बट ऑफ कोर्स हमारे लाइफ से लिंक करनी है, तो उसमें हमें 3 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज काकह, क्रो, 8th स्टैंडर्ड में हुआ है हमें। काकह का नाम है एकाक्षः। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो मैंने ये जो लिखा हुआ है 2 नाम, दोनों भी इसके ही नाम है काकह के। वन इज प्रॉपर नाउन एंड वन इज कॉमन नाउन। सो काकह इज कॉमन नाउन, वो एक कौवा है, एंड एकाक्ष इज अ प्रॉपर नाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रो। अभी ये जो एकाक्ष है कैरेक्टर के नाम्स भी देखो, ये पंचतंत्र और हितोपदेश में ऐसे ही नहीं दिए गए, उसका भी कुछ मीनिंग है स्टूडेंट्स। एक मीन्स 1 एंड यहाँ पे जो अक्ष ऐसा अनदर वर्ड है, दैट अक्ष मीन्स विजन। सो ये जो कौवा है या फिर क्रो है उसको एक ही आंख है ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। एकाक्ष इज नॉट 1 eye और हैविंग 1 eye। एकाक्ष इज 2-eyed bird having 1 eye vision। ये जो कौवा होता है, क्रो होता है, उसको ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत फोकस है। कौवे को 2 आंखें हैं बट वो फोकस रहता है एक ही चीज की तरफ, एक ही बार फोकस करता है। और वो थोड़ा सा यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जूम इट फॉर यू, ऐसे टेढ़ी अपनी गर्दन जो है टेढ़ी करके देखता है कोई भी चीज की ओर। तो ऐसा लगता है कि वो एक आंख से देख रहा है, एक्चुअली वैसे नहीं होता है, वो 2 आंखों से देख रहा है, बट वो एकदम फोकस कर रहा है एक ही अपने लक्ष्य के ऊपर, एंड इसीलिए उसको बोलते हैं 1 eye virgin। ओके, तो उसका जो विजन है वो है 1 eye का, एंड इसीलिए एकाक्ष। देन नेक्स्ट है मृगः, चित्रांग। मृगः का नाम है चित्रांग। मृग मीन्स डियर, यू नो दैट, एंड द नेम इज चित्रांग। अभी ये चित्र मीन्स पेंटिंग्स, some kind of dots are there on the body of this deer। अंग means body and चित्र means थोड़ा सा कुछ पेंटिंग किया हुआ है उसके बॉडी के ऊपर। पेंटिंग क्या इन द सेंस कुछ डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, तो इसीलिए उसका बॉडी जो है बहुत ही बेहतरीन लगता है, एंड इसीलिए उसको नाम दिया है चित्रांग। ब्यूटीफुल होता है वो इसके लिए। एंड द थर्ड कैरेक्टर इज श्रुगालः, द कनिंग कैरेक्टर, एंड इसीलिए उसको नाम भी वैसा ही दिया है स्टूडेंट्स। शूद्र मीन्स क्रूल और कनिंग,
एंड बुद्धि इज इंटेलेक्ट, तो जिसके पास कनिंग इंटेलेक्ट है उसको नाम दे दिया क्षुद्र बुद्धि। श्रुगालह मीन्स जैकल। ओके, ऑल्सो श्रुगालह के लिए और एक वर्ड हम लोग देखने वाले हैं मीनवाइल इन द लेसन, वो आप लेसन में खुद से फाइंड आउट करना जब भी आई विल एक्सप्लेन द लेसन। नाउ विल मूव अहेड, एंड जो मैं बोलने वाली थी कि हमें आज क्या देखना है, तो सिर्फ ये पर्टिकुलर लेसन पर संधीज हमें देखने, क्योंकि ये लेसन संधीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शॉक हो जाओगे, बट एक पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये पर्टिकुलर लेसन के 19 से भी ज्यादा संधि है, 19 से भी ज्यादा। ओके, एंड पूरा लेसन अगर हम स्कैन कर देंगे तो आराम से 35 के अब की संधीज आपको मिलेंगे, छोटे छोटे संधीज अगर हमने कलेक्ट किए तो। इतना इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 4 फॉर एंटायर स्टूडेंट्स फॉर द संधि, एंड फॉर कॉम्पोजिट स्टूडेंट ओनली लेसन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट फॉर संधि। सो अभी मैं एक एक संधि यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे ही चाहिए। सो फर्स्ट संधि है चित्रांगो नाम। सी हमारा टास्क कैसे, आपको ये संधि समझ के लेने हैं एंड देन यू हैव टू सॉल्व सम मोर संधिज फ्रॉम द सेम लेसन्स ऑन द सेम लाइन। यही रूल के ऊपर आपको कुछ सॉल्व करने के लिए मैं देने वाली हूँ, ओके, इन लास्ट 5 to 10 मिनट्स। ओके, द फर्स्ट संधि इज चित्रांगो नाम। यहाँ पे 2 वर्ड्स आर डिफरेंट, अलग अलग लिखे हुए, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड का एंडिंग हमें ऑब्जर्व करना है, जो येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, उसमें से हमें सिर्फ रूल अप्लाई करना है, ओ चेंजेस टू अह, ओ चेंजेस टू अह। सो यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे अह मीन्स विसर्ग ऐड किया हुआ है, ओ चेंजेस टू अह। देन वी हैव काकश्च, जहाँ पे जॉइंट है संधि में श के, यहाँ पे जॉइंट इज एट द श एंड वी हैव टू एंड sh changes to visarga. So पहला no need to write, बाद में मैं आपको टाइम, focus here please. Okay, then next है काको वद, ओएस संधि, इसको हम क्या बोलते हैं, ओएस संधि। वन्य में भी हमने ये ऐसे टाइप ऑफ संधिज देखे थे, ओएस संधि जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ओ चेंजेस टू अह, अह मीन्स विसर्ग, एंड एस जो है एस चेंजेस टू अ, एस मीन्स अवग्रह, अवग्रह चेंजेस टू अ। सो ओएस संधि का आंसर हमेशा क्या होता है, विसर्ग प्लस अ। हेंस फर्स्ट वर्ड जो है एंड्स इन विसर्ग काकह एंड नेक्स्ट वर्ड इज अवदत। होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, तीनों भी संधिज के रूल्स आपको पता चल गए। ओ चेंजेस टू अह, श चेंजेस टू विसर्ग, ओ एस संधि इज नथिंग बट ओ चेंजेस टू अह, एस चेंजेस टू अ। ओके, किसी को भी डाउट नहीं है, श्योर ना। नेक्स्ट फोर्थ वन, अकस्मात दागंतुना। ओके, हियर वी हैव अकस्मात दागंतुना। तो यहाँ पे देखो द जॉइंट इज एट दा, मैंने आपको बोला था इसको हम क्या बोलते हैं, द दा दीदी संधि। क्या बोलते हैं इसको हम, द दा दीदी संधि। एंड ये द दा दीदी संधि को हमें कैसे यूज करना है, सो द चेंजेस टू त, द चेंजेस टू त। सी स्टूडेंट्स अच्छे से केयरफुली लिसन इट, आई एम सेइंग इट इज द दा दीदी संधि बट द चेंजेस टू त, एंड नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ आ बिकॉज हियर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दा। अगर दी होता नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ई, वॉवेल से ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट वर्ड, बट डिपेंडिंग ऑन द जॉइंट। तो जॉइंट कॉम्बिनेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा वॉवेल हम लोग यूज करेंगे, बट कंपल्सरी द चेंजेस टू त। आई होप किसी को डाउट नहीं है, डाउट है तो रेज योर हैंड्स प्लीज। नेक्स्ट काके नोक्तम, काकेन प्लस उक्तम। वेरी सिंपल संधि, यहाँ पे देखो काके नो में देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओ एंड ओ इज स्प्लिट एज अ प्लस उ। ओ कैसे बनता है, तो ओ इज मेड अप ऑफ अ प्लस उ एंड हेंस द आंसर इज काकेन प्लस उक्तम, काकेन प्लस उक्तम। ओके, यस। अब ये जो 5 संधिज मैंने एक्सप्लेन किए, इसमें अगर किसी को डाउट है
प्लीज आपका क्वेश्चन जो भी है चैट बॉक्स में ऐड करना. Yes, Preet. हेलो What's your मैम, question? आपने Yes. जो फोर्थ वर्ड सिखाया ना, अकस्मादागंतुना, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका आपने संधि कैसे ब्रेक किया, वो एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार प्लीज? अकस्मात दागंतुना. फर्स्ट तो देयर इज अ जॉइंट एट दा. इसको हम याद रखेंगे द दा दीदी संधि. ओके, एंड ऑलवेज जब भी ये दा के या द दा दीदी के कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, द चेंजेस टू त. सो फर्स्ट वर्ड श्योरली एंड्स इन हलंत त, इसीलिए पहला वर्ड मैंने वहां पे ब्रेक कर दिया, अकस्मात, सडनली. ओके, एंड देन नेक्स्ट वर्ड विल गोइंग टू स्टार्ट विद अ वॉवेल, 100% विद अ वॉवेल. यहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन दा है, इसीलिए मेरा नेक्स्ट वर्ड आ से स्टार्ट हो रहा है. सो इट इज दैट्स व्हाई इट इज आगंतुना. सो आगंतुना इज अ स्ट्रेंजर. सो सडनली स्ट्रेंजर क्या है वो हम स्टोरी में देखेंगे. मैम, एंड वन मोर डाउट आई हैव. यस, व्हाट्स दैट? काकेनोक्तम. सो आपने बोला था करके ओ विल चेंज टू अह. That O, whenever the two words are different, चित्रांगो एंड नाम, दो वर्ड्स अलग अलग है, देन O changes to अह. यहाँ पे तो कंबाइन है ना, यहाँ पे हमें मिक्सचर दिख रहा है, काके नोक्तम. ओके, मिक्स हुआ है. तो हमें जैसे हमने दशोन किया था बेटा, डू यू रिमेम्बर इन समय, दश एंड उन दशोन, या सेम संधि है यहाँ पे, काके नोक्तम, काके न प्लस उत्तम. ओके, थैंक यू. या ओके, देन नेक्स्ट. और किसी को डाउट है फर्स्ट 5 संधिज में? ओके, ग्रेट. चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. एवं अस्तु, वेरी सिंपल संधि, म मा मी मी संधि जिसको हम बोलते हैं. सो अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ म इज हियर. सो एवं प्लस अस्तु. म मा मी मी संधि में होता क्या है? द फर्स्ट वर्ड एंड्स इन हलंत म एंड नेक्स्ट वर्ड श्योरली स्टार्ट्स विथ वॉवेल. एवं प्लस अस्तु, म में इनकम्प्लीट म में एंड हुआ है एंड नेक्स्ट वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट संधि इज वेरी सिंपल संधि, जो ओएस संधि का एक छोटा पार्ट है, वनेस्मिन. उसमें सिर्फ एस अलग हमें दिख रहा है. वने इज अ मीनिंगफुल वर्ड, सप्तमी विभक्ति, तो वो एज इट इज हमें लिखना है. देखो यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है. एंड अस्मिन, यहाँ पे एस चेंजेस टू अ, एस चेंजेस टू अ. सो द आंसर इज वने प्लस अस्मिन. देन वी हैव तत्रागतः. ओके, वेरी सिंपल संधि अगेन. ओ, यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट इज एट आ. तत्रा की जगह पे हमें हाईलाइट करना है. तत्र प्लस आगतः, सिंपल संधि है. अ प्लस आ को एक साथ कंबाइन करके एक ही बार लिख दिया है आ. सो द टू वर्ड्स आर तत्र प्लस आगतः, देयर अराइव्ड. नेक्स्ट संधि इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करो. पाशैर्बद्धः, यहाँ पे ये जो रेफ दिख रहा है, ब के ऊपर जो रेफ है, रेफ इज रफार, ब के ऊपर जो कर्व जैसा दिया हुआ है, दैट रेफ चेंजेस टू विसर्ग एंड हेंस माय आंसर इज पाशैहि बद्धः. अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे तो दो वर्ड्स को बस स्प्लिट करके लिखा है एंड एक छोटा सा डिफरेंस हुआ है, वो यहाँ पे येलो से हाईलाइट किया हुआ है. दैट रफार रेफ चेंजेस टू विसर्ग, पाशैहि प्लस बद्धः. And then the last, sorry, not last sandhi. Then the next sandhi is mitranyevo. यहाँ पे there is combination of य या ई. यहाँ पे ये है और हमने एक बार सीखा था समय में ई प्लस अ इज इक्वल टू य. वैसे ही यहाँ पे ई प्लस ए इज इक्वल टू ये, सिर्फ अ की जगह पे ए यूज किया है एंड इसीलिए फर्स्ट वर्ड श्योरली एंड्स इन ई, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए. मित्राणि प्लस एव, मित्राणि फ्रेंड्स. मित्राणि प्लस एव. Okay, quickly take a screenshot of all these sandhis. Okay, we're going to move ahead. We have few more, 2 or 3 sandhis more from the lesson. Okay, then next sandhi is mrugastam. अब ये जो मृगस्तम है,
यहाँ पे वी हैव टू जस्ट फोकस कि मृग एंड तम दो वर्ड्स एज इट इज लिखे, बीच में एक प्लस का साइन दिया है, तो दो वर्ड्स को मैंने एज इट इज डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग लिख दिया. ओनली दैट स चेंजेस टू विसर्ग. स चेंजेस टू विसर्ग. श, र, स चेंजेस टू विसर्ग. जब भी हमें कॉम्बिनेशन में स, र, श दिखेगा, इट चेंजेस टू विसर्ग. These are not a grammar rules. These are only the hints to remember. Okay, grammar का अलग से हमें बाद में देखना है lecture. But there is no question at all in the exam as write down the name of a sandhi or write down the rule of a sandhi. So just practice it. Then tavan mama. यहाँ पे न changes to त. क्यों होता है ऐसा? अभी आप बोलोगे मैम आप क्या कर रहे हो, पहले आपने बोला द चेंजेस टू तो, आप अभी आप बोल रहे हो न चेंजेस टू तो, कैसे याद रखेंगे? तो सिंपली जब ये न के बाद कोई भी नेजल कॉन्सोनेंट आता है. अब ये नेजल कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई? तो नेजल कॉन्सोनेंट्स मतलब 5 ग्रुप्स होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, च, ज, झ, ञ. देन आपका ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न एंड प, फ, ब, भ, म. ये जो 5 ग्रुप्स है उसमें से लास्ट वाले जो सब लेटर्स होते हैं लाइक ङ, ञ, देन आपका ण, बाण वाला ण, आफ्टर दैट न, एंड देन लास्ट वन इज म. ये सब होते हैं नेजल कॉन्सोनेंट्स. तो ये न के बाद जब भी कोई भी नेजल कॉन्सोनेंट आ जाता है, देन हमें वहां पे ही हमारा फर्स्ट वर्ड ब्रेक करना है. And always that no changes to ta, no changes to ta. So tavat plus mama. Tavan mama is tavat plus mama. Star mark karo, सबसे important संधि. Then next संधि is very simple, obvious संधि इसको हम बोलेंगे. नेतान. Screen दिख रहा है ना? Somebody is saying कि screen is not visible. Anybody please reply. अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? विजिबल. ओके. तो 13th संधि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और जिसका कुछ मिस हुआ है मैं आपको चांस देती हूँ. ये दो संधि होने के बाद पाषाण एतान, पाषाण प्लस एतान. बहुत ही ऑब्वियस संधि है, न इनकम्प्लीट है इसीलिए उसमें ए मिक्स हो गया एंड एज अ मात्रा हमने उसको ऐड किया. पाषाण प्लस एतान. इसको संयोग कहते हैं एक्चुअली, बट स्टेट बोर्ड में वी कॉल्ड इट एज संधि आल्सो. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट संधि, इसको भी स्टार मार्क करना है स्टूडेंट्स. तावन मम के जितना इंपॉर्टेंट संधि है उक्तम च. उक्तम च में ये जो ञ दिख रहा है आपको, च, च, ज, ञ, उसके लाइन में आ रहा है ञ चेंजेस टू म. ञ चेंजेस टू म. अगेन ये नेजल कॉन्सोनेंट था एंड इसीलिए हमें कॉमन नेजल कॉन्सोनेंट के साथ इसको रिप्लेस करना है. रूल कुछ इस तरह से बताता है कि when we use these kinds of nasal consonants except m, we have to replace it with the common nasal consonant m. M is a common nasal consonant जो सब में यूज होता है. य, र, ल, व, स, श, ह, ळ किसी के भी साथ यूज होता है. मराठी में आप जिसको अनुस्वार कहते हो, टी, या कुमकु, या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो आप अनुस्वार के साथ लिखते हो, जिसको संस्कृत में हम यूज करते हैं म. सो उक्तम प्लस च. ओके. तो ये सब जो डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट संधिस थे फ्रॉम लेसन, पूरे लेसन में से वो यहाँ पे कवर हो गए. अभी बेस्ड ऑन दीज संधिस यू हैव टू सॉल्व सम मोर संधिस इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज ऑलरेडी टाइम इज गोइंग टू अप. सो नाउ द टाइम टू योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज. Any doubts? No doubts. Okay. Last संधि फिर से एक्सप्लेन करना है. ओके. उक्तम च, इसमें दो वर्ड्स है उक्तम प्लस च एंड वहां पे सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो
च छ ज झ ञ वाला नेजल कॉन्सोनेंट है, अनुनासिक जिसको हिंदी में आप बोलते हो, दैट अनुनासिक ञ चेंजेस टू म. म इज अ कॉमन अनुनासिक यूज्ड फॉर ऑल द कॉन्सोनेंट्स ऑलमोस्ट. इसीलिए हम कभी भी श्लोक बोलते हैं, देखो तब हम अनुस्वार दिखता है वसुदेव सुतम देवम, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अनुस्वार को म के जैसे प्रोनाउंस करते हैं, विच इज अ कॉमन नेजल कॉन्सोनेंट. ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड. आपको ये रिवाइज करना है. नेक्स्ट लेक्चर में देखो 2 टेस्ट आपके होने वाले हैं. एक, कोई 2-3 लोगों को मैं विधिलिंग लकार या लोट लकार के प्रत्यय रिसाइट करने को कहूंगी, और किसी को भी चॉइस नहीं, तो इसीलिए लर्न करके ही आना है. एंड सेकेंड, सबको अपने अपने नोटबुक में कुछ संदीप सॉल्व करने बेस्ड ऑन सेम रूल्स. सो क्विकली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. किसी को प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी ले लो. आपको प्रैक्टिस करना है ये संधीज, यही नहीं आने वाला है, इसके जैसे सिमिलर संधीज आई एम गोइंग टू कीप फॉर द टेस्ट. ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब समझा है. अब आज हमने 2 टॉपिक्स किए हैं, लकारम लिखत एंड संधि विग्रह ऑफ लेसन 2. तो लेसन 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है. नेक्स्ट टाइम हम लोग संधि एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम विल गोइंग टू स्टार्ट विद द लेसन 2. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड पुनर्मिलामः.